क्लास है हमारा. Today's class is all about here prepositions simplified by me. So we will learn about the prepositions. First of all, I would like to tell you, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन है क्या. देखिए मैं प्री को लाल किया हूं, रेड कलर से मार्क किया हूं, बोल्ड किया हूं. ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? पहले. प्री मतलब पहले होता है, सभी को पता है. देखिए तो प्रीपोजिशन है क्या, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग. A preposition is a word which expresses relationship of a noun or a pronoun to the other words of the sentence. हिंदी में बोला जाए, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में जो और वर्ड्स है, जो दूसरे वर्ड्स है, उनके साथ जोड़ता है. कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल देखिए, आप समझ में आएगा. एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, he killed a rat with a bat. He killed a rat with a bat. with को हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे. क्यों? with क्या कर रहा है? a bat और a rat के बीच में संबंध जोड़ रहा है. with is a preposition. Why? Because with is connecting the meanings of the sentence. How? If I don't use with, okay, a bat will be insignificant. अगर with का यूज नहीं करेंगे तो ए बैट का कोई मतलब रहेगा नहीं. ठीक है, तो उसका मतलब जोड़ने के लिए, उस बैट के साथ संबंध जोड़ने के लिए हमको with का यूज करना पड़ रहा है. मतलब with क्या कर रहा है? he killed a rat. इस ये पूरे सेंटेंस का मतलब बैट से जोड़ रहा है. तो क्लियर है आपका? ठीक है, आप लोगों को सभी क्लियर होगा ये व्हाट इज प्रीपोजिशन. ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के और जो वर्ड्स है उनके साथ जोड़ता है. It connects the meaning with other words. Okay. The frog jumped into the pond. जो frog है pond में jump किया है. अगर मैं into का यूज नहीं करूं, if I don't use the word into, इसका मतलब क्या होगा? frog jumped. इसका मतलब कोई रहा नहीं. तो pond के साथ संबंध जोड़ने के लिए, to connect the meaning with pond, I have to use into. Is it clear? So there, likewise, there are many prepositions like in, of, to, at, by, with, for, under, above, etc., etc. We have number of prepositions. English language is full of prepositions. There are many prepositions. As you can see in the second slide. See the third slide here. There are 7 types of preposition. There are 7 types of preposition. The first, prepositions of time. That means prepositions related to time. Prepositions for place. Prepositions related to place. Prepositions for direction. Prepositions related to direction. And prepositions for agent. Agent means person. Prepositions for instruments, that machines, instruments, something like that. Prepositions of prepositional verbs. That means there are verbal prepositional phrase. I will talk about it in the later slides. And 7th number, appropriate preposition. That is very confusing but is very important. So these are the types of prepositions. So let's proceed to the first part, that is prepositions for time. Here, as you can see here, the first most important prepositions are here: in, on, at. These are the most important prepositions: in, on, at. So when we will use these prepositions, you can see months or years. For months or years, we can use this preposition in, like in March, in 2005. Particular time for a day or a month or year, like in evening, in morning, in 3rd week of April, in winter, in summer. A century or a specific time in past or future. That means you can see here, for a century, for a specific time, we should use, हम लोग क्या करेंगे use, century के लिए, कोई निर्दिष्ट टाइम के लिए, ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है बताने के लिए हम लोग इनका यूज करेंगे. जैसे देखिए, इन द 20th century, 20वीं सदी में, इन अर्लियर डेज, इन द स्टोन एज, स्टोन एज के टाइम में, इन फ्यूचर, भविष्य में, इन पास्ट. तो ऐसे सब ईयर्स बताने के लिए, स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, मंथ्स बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं. अब फिर देखिए नेक्स्ट है ऑन. फॉर डे वी कैन यूज ऑन, दैट ऑन संडे, डेट्स ऑन 7th of February और ऑन February. Particular days, on my birthday, on Independence Day.
For particular days, for dates, for a day we have to use on। मैंने किसी खास दिन के लिए, ठीक है, कोई दिवस आ गया, मदर्स डे, फादर्स डे, किसी का बर्थडे, उसके लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, किसी खास दिवस के लिए, दिन के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। फिर देखिए एट का यूज, देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ अ क्लॉक, एट का यूज कब करते हैं? टाइम ऑफ अ क्लॉक, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock। शॉर्ट और प्रिसाइज टाइम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे एट नाइट, एट सनसेट, एट नून, एट लंच टाइम, एट द मोमेंट, एट बेड टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, एज यू कैन सी इन दी बॉक्स। लेट्स कंटिन्यू, वी हैव एग्जांपल्स लाइक दिस। She was born in 1986. As you can see that all the red words are prepositions here. They are used on a specific time. That means when we have time, year, when we have a special day, when we have season, when we have clock time, when we have on a month, okay, or short time like in the morning. So we have these prepositions on time. Now we will have prepositions for place. Okay, that is also important here. See here, that means for place we can use in a hall. In is also used and on is also used, at is also used for place as well as for time also. In a hall, in a school, in building, in box, in car, that means for place, place having some physical or virtual boundary, that means ऐसा place जिसका boundary हो, उसके लिए हम लोग in का यूज करते हैं। एक बाउंड्री होता है जिसका, सब चीज का बाउंड्री है, जैसे कपबोर्ड है, एक रूम का है, एक कंट्री का बाउंड्री है, ठीक है, जिसका फिजिकल बाउंड्री हो उसके लिए लोग इन का यूज करते हैं। फिर देखिए सरफेस ऑफ थिंग्स, कोई चीज किस पर रखा हुआ है, ऑन द टेबल, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द एज, ओके, ऑन द पेज, ऑन अ वॉल, ऑन अ रूफ, ऑन द मैप। तो ऐसी चीज के लिए हम लोग अगर कोई चीज किस पर रखा, सरफेस से टच कर रहा अगर, तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एट का स्पेसिफिक प्लेस के लिए, जैसे एट द बस स्टॉप, एट बस स्टॉप, एट द एंट्रेंस, एट फ्रंट ऑफ द चेयर, एट द बॉटम ऑफ ग्लास, एट द एज ऑफ रूफ। कोई स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम लोग तब यूज करते हैं एट की, जैसे कोई होता है किनारा हो गया, बस स्टॉप हो गया, ओके, प्लेटफॉर्म हो सकता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। दे लिव इन इंग्लैंड, ओके, सो वी विल हैव एग्जांपल्स, कुछ कुछ एग्जांपल्स है प्रीपोजिशंस के प्लेस के लिए। देखिए इंग्लैंड के लिए हम लोग इन लगाए हैं, दैट मींस अ बिग कंट्री, उसके लिए दे प्लेस देयर बुक्स ऑन द टेबल, ओके, ऑन अ टेबल, इसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, सरफेस से टच कर रहा है। फिर देखिए आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, मैंने उससे बस स्टॉप पर मिला, ठीक है, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस से एट लगाए हैं। सो रेड किए गए वर्ड से वो सब प्रीपोजिशन से जो खास तरीके से यूज किए गए हैं, जो मैं दिखाया आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। 3 नंबर जो है हम लोगों का जो रूल है, ये आपका है हियर एजेंट्स का है। मतलब एजेंट्स होता क्या है, कुछ पर्सन्स होते हैं उनके लिए हम लोग एजेंट का यूज करते हैं, कुछ कुछ चीजों का लिए। These prepositions are used to express a causal relationship between noun and an action, मतलब कोई करने वाला होता है उससे जोड़ने के लिए। जैसे it will be clear, देखिए एग्जांपल में क्लियर होगा, a nice book was written by John Keats। जो बुक जो है कौन कौन लिखा है, ठीक है, एक एजेंट लिखेगा बुक को, तो वही एजेंट का काम करता है, देखिए जॉन किट्स, तो जॉन किट्स को कौन जोड़ा सेंटेंस के साथ, बाय। बाय जो है एजेंट को डिनोट करेगा यहाँ पर, तो एजेंट का जब बात आएगा हम लोग बाय का यूज करेंगे। अ लॉट ऑफ नॉइज वाज मेड विथ द स्टिक, तो एजेंट क्या है, स्टिक है, यहाँ पर स्टिक से बहुत ज्यादा नॉइज किया गया, ठीक है। द टास्क वाज फिनिश्ड बाय हिम, काम कौन खत्म किया, डूअर कौन है हमारा, जो डूअर है, ठीक है, डूअर कौन है, देखिए यहाँ पर हिम है हमारा, ठीक है ना, इसलिए बाय का यूज किया गया है। द मैन वाज किल्ड विद द नाइफ, मैन को किससे मारा गया, नाइफ से मारा गया। तो कुछ कुछ एजेंट्स के लिए हम लोग बाय विथ इसका यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट आ जाता है या एजेंट आ जाता है। तो यहां देखिए डायरेक्शंस, prepositions for direction, these prepositions express the direction of something, okay, into, to, through, towards, etc। तो कुछ कुछ प्रीपोजिशन जो है डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब डायरेक्शन को बताते हैं,
जैसे वो कहाँ जा रहा है, दे आर गोइंग टू क्लासरूम दैट मीन्स टूवर्ड्स क्लासरूम। द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर, स्नेक उसकी तरफ जा रहा है। तो जब इशारा किया जाए किसी दिशा की तरफ, किसी दिशा की तरफ इशारा किया जाएगा तब हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशंस का, ऐसे प्रीपोजिशन का, टू, टूवर्ड्स। ही थ्रू अ बॉल इन अ रिवर, किस तरफ फेंका है, रिवर में फेंका है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रीपोजिशंस। कैसे प्रीपोजिशन, टू हो गया, टूवर्ड्स हो गया, थ्रू हो गया। और एक एग्जांपल था आपको कि ही इज कमिंग थ्रू द जंगल, जंगल से होकर आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, जंगल से होकर आ रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो quickly we are moving to the next slide. The rule 5. Device or machines, such prepositions are used for joining nouns, instruments, devices, machines, etc. to other words in the sentence, that is on, by, with, the help of, etc. जैसे यहाँ देखिए, he went to home by a car, कैसे गया, साधन क्या है जाने का, कुछ साधन है ना जाने का, साधन क्या है, ठीक है, तो कार से गया। द लॉक कैन नॉट बी ओपन विद द की, अब की से ही खोला जाएगा लॉक को, ठीक है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्या है खोलने का, इंस्ट्रूमेंट क्या है खोलने का, देखिए की है, तो की का यूज कर रहे हैं हम लोग विथ के साथ, बाय यूज नहीं करेंगे। शी वाटर्ड द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ वाटर पाइप, किसका हेल्प से, वाटर पाइप का हेल्प से। तो वाटर पाइप क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। जब इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं कोई काम करने के लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दैट मीन्स आई क्लीन द रूम विद द ब्रूम, ठीक है, ब्रूम का झाड़ू लेकर मैंने क्लीन किया रूम को। ही ब्रोक द वॉल विथ अ हैमर, एक हथौड़े से दीवार को तोड़ दिया वो। तो ऐसे करके हम लोग ऐसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, जब कुछ डिवाइस की बात आती है, मशीन्स की बात आती है तब। तो ये रहा 5th नंबर रूल, प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। 6th नंबर रूल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्रीपोजिशन verb is a combination of verb and a preposition. As you can see, I have charted out the equation kind of. Prepositional verb क्या है, is equal to verb plus preposition. ऐसे preposition जो verb के साथ आते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग prepositional verb। क्या होता है, ऐसे क्या करते हैं ये लोग, एग्जाम्पल देखिए आप, she is waiting for him, she is waiting for, तो waiting के साथ for लगा हुआ है, अगर नहीं लगेगा तो ये incorrect हो जाएगा, मीनिंग इसका बदल जाएगा। फिर देखिए, he is knocking at the door, वो डोर पर नॉक कर रहा है, knocking at the door, ठीक है। तो यहाँ नॉक के साथ क्या लगा है, एट लगा है, वेट के साथ क्या लगा था, फॉर लगा था। फिर देखिए, she is listening to music, लिसनिंग के साथ क्या लगा, म्यूजिक, ठीक है ना, म्यूजिक और लिसनिंग के बीच में टू लगा हुआ है क्योंकि कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन लगा है, अब प्रीपोजिशन के साथ कुछ वर्ब लगा है, और जैसे ही जब दोनों पेयर में आएंगे तो इन्हें बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल वर्ब भी बोलते हैं। द किड्स आर लाफिंग एट अ जोकर, लाफिंग के साथ हम लोग एट लगाते हैं, लाफिंग एट समबडी, लाफिंग एट अ जोक एंड एनीथिंग। वी बिलीव इन गॉड, बिलीव जब भी यूज करेंगे, जब भी किसी इंसान के अंदर हम लोग बिलीव करते हैं, किसी पर्सन को बिलीव करते हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इन लगाते हैं बिलीव के साथ। अब इसे अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं हमेशा, ये तो गलती हो जाएगा फिर, क्योंकि ये फ्रेज में आता है। आई अग्री विथ यू, ओके, ऐसा है। फिर अग्री के साथ एट लगा हुआ है, देखिए, अगर इंसान होगा तो अग्री के साथ विथ लगेगा, अगर इंसान नहीं होगा, कोई मैटर होगा, कोई प्रपोजल होगा, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वी विल यूज अग्री विथ एट, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू द सेम रूल हियर, बट देयर आर सम commonly used prepositional phrases are as follows: laugh at, knock at, I have charted out for you all, see here, believe in, suffering from, remind of, worry about, approve of, charge with, there are many like that. Using correct preposition in a prepositional verb is very important. जब भी prepositional verb की बात होगी, we have to use correct preposition, otherwise वो incorrect हो जाएगा। A sentence having a wrong preposition is grammatically not correct. That is, he is knocking on the door, ये wrong है। क्या होगा, he is knocking at the door, क्यों होगा at the door, क्योंकि ये prepositional phrase का पार्ट है। preposition
प्रीपोजिशनल फ्रेज में नॉकिंग के साथ एट ही लगाना पड़ेगा, तभी करेक्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट. वी हैव टू यूज एट विथ नॉकिंग, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. वही उसकी कंटिन्यूएशन देखिए आप. प्रीपोजिशनल वर्ब्स मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट. अब क्या बोल रहा है इसमें, प्रीपोजिशनल वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, दैट कम्स डायरेक्टली आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ द प्रीपोजिशनल वर्ब, जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा. जैसे देखिए, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम के बाद आया है फीवर, तो एक ऑब्जेक्ट आएगा. डोंट लाफ एट पुअर, तो पुअर जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो प्रीपोजिशन के बाद आया है, ठीक है. शी इज लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, कहां देख रही है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही है. द डॉग इज बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर के ऊपर भौंक रहा है वो, तो जो एट लगा हुआ है वो जस्ट वर्ब के साथ ही आएगा. प्रीपोजिशनल फ्रेज में वर्ब के साथ ही हमको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट विल कम, एज यू हैव सीन इन द 4 एग्जांपल्स हियर. तो ये रहा जो 7th रूल देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. Some verbs, adjectives and nouns are followed by particular prepositions. कुछ verb से, कुछ adjective से, कुछ noun से. ये क्या करते हैं, कुछ particular preposition को लेते हैं, इनके साथ ये फिक्स होता है. जैसे ये बॉन्डिंग में आते हैं हमेशा. जैसे you can see I have given examples. Absorbed in, he is completely absorbed in his research work. वो कुछ रिसर्च कर रहा है उसमें, एब्जॉर्ब इन है मतलब खो चुका उसमें, लीन हो गया है, ठीक है. ही हैज एनग्रॉस्ड इन दैट, तो एब्जॉर्ब के साथ हमको इन लगाना पड़ेगा, ऑन नहीं, इनटू नहीं, इन लगाना पड़ेगा, ये फिक्स है, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट. फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, एब्सटेन फ्रॉम मतलब परहेज करना. यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तुम्हें दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए, तुम्हें छोड़ देना चाहिए. तो एब्सटेन का जब यूज करेंगे हम, वी हैव टू यूज फ्रॉम. फिर देखिए, एक्सेप्टेबल टू, दैट सजेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो जैसे ही यूज करेंगे हम लोग एक्सेप्टेबल की, ठीक है ना, तो हमें यूज करना पड़ेगा टू. किसके लिए नहीं एक्सेप्टेबल, हमारे लिए. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, टू अस, टू देम, तो एक्सेप्टेबल के साथ हम लोग टू ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट. सो वी हैव टू यूज ओके दीज प्रीपोजिशंस ओके विद देयर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं. एक्विंटेड विथ, आई एम ओनली स्लाइटली एक्विंटेड विथ हिम, एक्विंटेड के साथ हम लोग विथ का यूज करते हैं. फेमिलियर विथ, एक ही मीनिंग हुआ दोनों का. तो ये जो प्रीपोजिशन से एप्रोप्रिएट हो गए. फिर देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशनल वर्ब हो गया, आई एम गोइंग बैक, ओके पीछे आ रहा हूं, देखिए ठीक है. इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हो गया हमारा. 4th नंबर, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शंस का हो गया. फिर यहाँ देखिए प्रीपोजिशन फॉर एजेंट्स का हो गया, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस का हो गया, ठीक है. और यहाँ पर अल्टीमेटली टाइम का. तो टाइम और प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं, और एप्रोप्रिएट भी. वैसे सारे देयर आर मेनी पार्ट्स, ओके. प्रीपोजिशंस के और भी पार्ट्स हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशन, बहुत है. इसके और 3-4 पार्ट हैं जिसको मैं अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा. तो ये रहा आज का, इतना ही प्रीपोजिशंस, ओके. अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप, ठीक है. अदरवाइज आई विल सेंड यू द PDF, ओके. So thank you for all.